Okay. Yes. Good morning, Sahil. Sahil Kinake. Good morning. Sahil Kinake. Good morning. Good morning, sir. Beta, why you was absent yesterday? Sir, network problem, sir. Network problem was there for last many days, है ना? Yesterday, Akanksha Srivastav, Anudipa Moon, both were absent. Hansini, keep on absent. Rutuj Rahule, Rutuj. Manish Vidate, where are you? ये सबने एक हैबिट जैसा बना लिया है ना, अल्टरनेट डेज में क्लासेस अटेंड करना. Anudipa, why you was absent yesterday? Hello, Manish. Anudipa Moon, why you was absent yesterday? ये क्लास बंक करने वाला काम जो है ना, सारे स्टूडेंट्स छोड़ दो, समझे? यस, मनीष विदाते. मनीष, आगे से क्लासेस बंक नहीं करना. Yes, sir. चलिए, so let us come to the point. Okay, well, so wait for a minute. I think I didn't open the chapter. Yes, real number. कौन सा सेक्शन चल रहा था? इज स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. ये वाला हमने शायद स्टार्ट कर लिया था, हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट. Was so? Yes, sir. Started. Yes, sir. Yes, sir. Well, just a minute. बेटा अभी मैंने आप लोगों को एक क्विज भेज रहा हूं ऑन होमवर्क ऐप, ठीक है? और दिस मस्ट बी कंप्लीटेड बाय टुमारो. ओके, 3 PM. Okay, sir. यहाँ तक बात आई समझ में? Okay, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. डिफरेंस ये है कि Yes, ड्यूरेशन sir. जो है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज 30 मिनट ओनली. तो एक बार आपने यदि क्विज स्टार्ट कर ली, समझे, तो 30 मिनट के अंदर अंदर आपको कंप्लीट कर लेना है. गॉट इट?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is from geography chapter 1. Okay, क्विज कौन से चैप्टर में से है? Geography Geography chapter 1. ठीक है, और ये मैंने क्विज पोस्ट कर दी है. ठीक, यू सी इट लेटर ऑन. चलिए, वेल, सो we have started with this section, hunger, hardship and popular revolt. ठीक है, so the 1830s were the years of great economic hardship in Europe. ठीक है, तो 1830 के आसपास से यूरोपियन कंट्रीज में बहुत बड़ी आर्थिक समस्याएं शुरू हो गई थी. Got it? The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over the Europe. पूरे यूरोप में, ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century में क्या था? enormous increase in population. बहुत तेजी से डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज की पॉपुलेशन क्या होना शुरू हुई? इंक्रीज होना शुरू हुई. In most countries there were more seekers of job than employments. So in most of the countries, okay, very few countries were left where the condition of employment was not so bad, but in most of the countries it was very bad. Okay, so with comparison to the available employment, more numbers of people were there who were searching for the jobs. Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. Okay, now, so in rural areas also the tendency started that the living standards are not good in villages. है ना, गांव में ये एक टेंडेंसी बन गई थी कि विलेजेस में लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है. So what they did, okay, so people from rural areas migrating to the cities in search of better job conditions, better life. But what happens in towns and cities also, jobs were not available. Towns और cities में भी क्या available नहीं थे? Jobs available नहीं थे. Got it? Now, because of this, what happens? अब इसके कारण क्या होना शुरू हुआ? ठीक है, तो जब जॉब अवेलेबल नहीं थे तो पीपल हैव टू लिव इन पॉवर्टी. ठीक है, गरीबी में रहना है, बहुत बहुत दिनों तक क्या नहीं मिल रहा है? कोई जॉब सर्विस वगैरह नहीं मिल रही. तो इनकम लेवल जो था वो कैसा हो गया? जीरो हो गया. इनकम लेवल कैसा हो गया? Zero. They are forced to live in slums. इसलिए मजबूरी में कहाँ रहना पड़ता था? स्लम्स में. Slums area. Good. Smaller producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. Okay? So small producers in town were often faced with stiff competition. जो टाउन्स और सिटीज थी उनमें जो स्मॉल प्रोड्यूसर का मतलब है जो छोटे छोटे फैक्ट्रीज थी, छोटी जो फैक्ट्रीज थी जहां पर प्रोडक्शन कैसा होता था? लेस क्वांटिटी में. ठीक है, सो दे हैव टू फेस स्टिफ कंपटीशन. उन्हें बहुत तगड़ा कंपटीशन झेलना पड़ता था फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड. क्योंकि इस जमाने तक इंग्लैंड में क्या स्टार्ट हो गया था? मशीन बेस्ड फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था. तो उस फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन के कारण ठीक है क्या हुआ? इंग्लैंड में जो प्रोडक्ट बनते थे, इंग्लैंड में जो माल बनेगा वो सस्ता बनेगा. ठीक है, इसलिए
बाकी के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ेगा, बहुत तगड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों में से मैक्सिमम को यदि मालूम हो, हमारे यहाँ पर मैक्सिमम टॉयज कहाँ के होते हैं बेटा? Japan and China. Made in China. और मोबाइल फोन्स Made in China. मेड इन China. USA. रीजन क्या है? China. रीजन सिर्फ इतना है कि जितना लार्ज स्केल पर चाइना में थ्रू द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, उतना प्रोडक्शन वर्ल्ड के और किसी कंट्री में नहीं होता। प्रेरणा पवार, ज्वाइन द क्लास। ठीक है। So the small producers in towns were often faced with stiff competition. उन्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत stiff competition, तगड़ा competition face करना पड़ता था। Got it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, They sir. have to face the very stiff competition. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshop and was only partly. Raj Chaudhary, वो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, उसको बोलिए क्लास अटेंड करेगा। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, है ना। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन कहाँ फेस करना पड़ रहा था? टेक्सटाइल प्रोडक्शन। टेक्सटाइल दैट इज क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इन विच इंडस्ट्री? Cloth manufacturing. ठीक है। So because the cloth manufacturing was done mainly in homes or small workshop and was only partly machinized. ठीक है। यानी जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग था, कपड़ा बनाने की जो मिल थी, तो सबसे पहले कपड़ा बनाने की, क्लॉथ बनाने की जो मिल्स हैं वो कहां पर? इंग्लैंड में ओपन हुई। यस प्रशीक, हाँ, मेरे कॉल करने के बाद तुमने क्लास अटेंड करी है ना? हेलो, ऑनलाइन था। अभी मैं परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस देख के बताता हूँ क्लास के बाद, है ना। तुम शुरू से ऑनलाइन थे ना? आज की क्लास में तुमने शुरू से ज्वाइन कर लिया था? हाँ ठीक है। तो जब क्लास खत्म होगी तो तुम्हारे नंबर ऑफ मिनट्स आ जाएंगे मेरे पास में कि टोटल 40 मिनट की क्लास में प्रशीक उपरे कितने मिनट प्रेजेंट था। फिर मैं रिकॉर्ड भेजता हूँ तुमको, है ना। फिर रिकॉर्ड भेजता हूँ, रुको जरा। चलिए। सो इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के उन कंट्रीज में where the aristocracy still enjoyed power, यानी यूरोप के उन कंट्रीज में जहां पर अभी भी एरिस्टोक्रेसी यानी समाज का उच्च वर्ग, एरिस्टोक्रेसी किसको कहते हैं? नोबेलिटी को। एरिस्टोक्रेसी यहाँ पर किसके लिए है? Nobility. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, यानी यूरोप के उन कंट्रीज में जहां पर एरिस्टोक्रेसी के पास ताकत थी, पावर थी, ठीक है। इन दोज एरियाज पीजेंट्स स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। उन इलाकों में जो पीजेंट्स थे, किसान जो थे, उन्हें अभी भी क्या पे करना पड़ता था?
फ्यूडल ड्यूज पे करना पड़ता था। ठीक है, अब फ्यूडल ड्यूज वगैरह ये सब क्या होता है, यदि आपको ध्यान हो तो ये हमने स्टैंडर्ड 9th में जब 3 एस्टेट सिस्टम पढ़ रहे थे उस समय पर डिस्कस किया था तन्वी। यस सर। ठीक है, सो जिन एरियाज में फ्रांस के जिन इलाका सॉरी यूरोप के जिन कंट्रीज में क्या था, एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावर में थी, उन एरियाज में किसान जो थे वो किसके बोझ के तले दबे हुए थे, फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country। अब इस सब के कारण ये जो गरीबी की स्थिति थी, है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस की जो कंडीशन थी, इसके कारण क्या हुआ, राइज ऑफ फूड प्राइसेस, वस्तुओं की कीमतें क्या होना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई। ठीक है, तो जो अनाज था, खाने की जो वस्तुएं थी, उनके दाम बड़ी तेजी से बढ़ते जाते थे। अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट, कई बार फसल क्या होती थी, बहुत कमजोर पैदा होती थी। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंडीशंस देयर वाज अ वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन्स एंड सिटीज। पॉपुलिज्म का मतलब होता है भयानक गरीबी, अस्त व्यस्त जैसी कंडीशन, यानी ऐसी स्थिति जहां पर लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा है। सो दैट कंडीशन इज नोन एज व्हाट बेटा, पॉपुलिज्म। यहां तक बात आई समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। The year 1848 was one such year। तो इस प्रकार की जो भूखमरी की कंडीशन है, समस्याएं जो है, वो अक्सर कहां पर, यूरोपियन कंट्रीज में होती रहती है। ठीक है, फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड। इसके कारण क्या हुआ, तो 1848 में इसी प्रकार की जो कंडीशंस हैं वो कहां पर बनी, फ्रांस में। तो फूड शॉर्टेजेस यानी भोजन की, अनाज की बहुत ज्यादा कमी हो रही थी। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, बेरोजगार थी। अब बेरोजगार होंगे तो क्या नहीं मिलेगा, इनकम नहीं। सो ड्यू टू द फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, द लार्ज पॉपुलेशन, बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग कहां पर, फ्रांस में, पेरिस में क्या, आउट ऑन द रोड यानी विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहां पर आ गए, वो सड़कों पर आ गए। विरोध करने के लिए कहां आए, सड़क पर, सड़कों पर, है ना। जो बैरिकेड्स लगाए थे, बैरिकेड्स क्या होता है, तो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस जो ऑब्स्टेकल लगाती है ना, यस सर। इधर यस सर। उसको बैरिकेड्स बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे बाड़बंदी। ठीक है, सो बैरिकेड्स वेर इरेक्टेड एंड लुई फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। और जो उस समय राजा थे लुइस फिलिप, वो मजबूरी में क्या हुआ, भाग गया। भाग गया, उसको भागना पड़ा। क्या करना पड़ा उसको, भागना पड़ा। अब भागना पड़ा, है ना। कौन भागे, लुइस फिलिप। लुई फिलिप बिलोंग टू विच डायनेस्टी बेटा, बॉर्बन डायनेस्टी। अब अकेले लुई फिलिप जो थे वो अकेले नहीं भागे, बल्कि बर्बन डायनेस्टी के बहुत सारे जो मेंबर्स थे उनको भी क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। ठीक है।
तो उनमें से कुछ लोग जो हैं वो हिंदुस्तान आकर के बस गए। कहाँ करके बस गए? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। ठीक है, चेक करते हैं इज इट सो। मैंने कहीं पर पढ़ा था, ओके, दैट हाँ, लास्ट किंग ऑफ फ्रांस फाउंड इन इंडिया, Balthazar Napoleon de Bourbon. Okay, now these are the descendant of Bourbon dynasty. It's very interesting. As you know, India is a melting pot of cultures since ancient times. Just like America, Canada, Australia, how we come today. This incredible story will surprise you with the journey of a royal who came to India. The name of the story is The Last King of France, who was found in India. Then we leave it behind for The Last King of France. Let us begin the story. King Balthazar Napoleon the Bourbon sounds French enough, and if we are told the gentleman by his name was next in line for the French throne, it might sound reasonable. But staring at the jovial and portly Indian boy from Bhopal, you can see why people are skeptical. While Balthazar always knew he was of French origin, his last name and Catholic faith are an easy giveaway. He had no idea of his royal heritage until Prince Michael of Greece visited his court. When Prince Michael of Greece knocked on his corridor, in doing some family research, Prince Michael, who also tells from the Bourbon clan, discovered that his first Latin nephew of Henry IV, named James de Bourbon, had worked hard to come to India. James de Bourbon had worked his way to India. Jean had fled France after killing the nobleman in a duel, but on his journey he was kidnapped by pirates, sold as a slave, and served in an Ethiopian army before eventually making his way to Goa in India. From there, he met the Mughal king Akbar and served in his royal court. For generations, James de Bourbon's descendants assimilated into the culture, marrying Indians. They abandoned their mother tongue for local dialects. In fact, Balthazar de Bourbon's command of French was incredibly poor, but since the Britain put a stop to Louis XVI's direct line, owing to Louis XVI's direct line, Balthazar influences the whole nation. Today, the Indian Europeans laugh about his distinctly middle-class lifestyle. Living get to Bourbon on the rocks, but he has a message for the people of France. If they are ever itching or relating to monarchy, he is more than willing to mount the throne, even if he doesn't speak the language. More information about this news and citation links is given in the description below. Do you want to meet the King of France and the King of France? Do let us know your feedback in comments below. Just joking. The Indiana Jones kind of survival story is funny to listen today, but if you see the journey of a person taking from countries to countries and cultures to cultures, makes us wonder there might be interesting stories related to our forefathers too. Do you have any story to share? Dear students, it was a very short story just I shared you, okay, how the member of one of the great dynasty of the world were finally forced to live in a middle class life, है ना। छोटा सा था, इंडिया से रिलेटेड था, इसलिए मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो शो किया। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So नेशनल असेंबली फिर से वही हुआ है ना कि राजा के भागने के बाद क्या होगा, एक नेशनल असेंबली बनेगी। क्या बनेगी? National Assembly. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes. Okay. Yes. So a national, yes बेटा,
a national assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21 and guaranteed the right to work. ठीक है, फिर से राजा यानी मोनार्कियल रूल खत्म हुआ, फिर से डेमोक्रेसी सेटअप के लिए एक नेशनल असेंबली बनाई गई। नेशनल असेंबली ने फ्रांस को डेमोक्रेटिक कंट्री मोनार्कियल सिस्टम से वापस के सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, डेमोक्रेसी। Then granted suffrage to all adult males above 21, और जितने भी एडल्ट मेल्स थे जो 21 से ऊपर के थे उनको क्या दिया गया? सफराज। सफराज इज व्हाट? वोटिंग राइट्स। क्या हो गया? वोटिंग राइट। वोटिंग राइट। Then नेशनल वर्कशॉप्स, अब इस वोटिंग राइट्स दिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गारंटीड द राइट टू वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी थी, तो राइट टू वर्क यानी सभी लोगों को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक, नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेयर सेटअप। ठीक, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए क्या सेटअप की गई? नेशनल वर्कशॉप। यहां तक बात आई समझ में? यस सर। यस सर। ठीक, अभी ये एक कंडीशन थी जो हंगर हार्डशिप रिवॉल्ट वाला हमने पढ़ा। अभी क्या है, उस टाइम पीरियड में, उस समय पर जो है कुछ वर्कर्स वगैरह जो थे दे हैव आल्सो रिवॉर्डेड, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने, डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी ने क्या किया था? रिवॉल्ट किया था। तो यहाँ हमें उसमें से एक पर्टिकुलर इवेंट या घटना के बारे में यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है। यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। यस सर। Where is Manojay Day? Manojay? Manojay? प्रथमेश परसुटकर? प्रथमेश परसुटकर? अभी यहाँ लाइव दिख रहे हो, जरा ऑनलाइन बात करो, ओपन योर माइक। प्रथमेश परसुटकर? प्रथमेश? प्रथमेश पी? प्रथमेश परसुटकर? माइक ऑन करो। ओके, ठीक है। तो यहां हमें उस टाइम पीरियड में, है ना, एक रिवॉल्ट हुआ था और उस इवेंट के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। ठीक है, तो अभी जो हमारा कमिंग पेजेस होगा उसमें हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? उस रिवॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इतनी बात आई समझ में? यस सर। जूही भोयर? Yes, sir. Do you know where is Prathamesh Parsutkar is living? Yes, sir, in Garchandur. गढ़चंदूर। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए। आई कॉन्टेक्ट हिम, क्योंकि अभी वो ऑनलाइन है, यहाँ पर दिख भी रहा है प्रथमेश पी, और कॉल लगा रहे हैं तो कॉल अटेंड नहीं हो रहा है ना, एंड he is doing that from last many days. Okay, I'll see the matter later on. So earlier in 1845, है ना, 1845 में
वीवर्स इन सिलीसिया, सिलीसिया यूरोप का एक पोर्शन या कोई इलाका था। सो वीवर्स इन सिलीसिया led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payments, है ना। अभी यहाँ पर किस्सा क्या है, और आप लोगों को यदि ध्यान हो तो स्टैंडर्ड सेवेंथ स्टैंडर्ड में आप लोगों को एक चैप्टर था द स्टोरी ऑफ द शर्ट करके, ध्यान है? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. हमारा स्टोरी ऑफ द शर्ट वाला चैप्टर था, उसको यदि आप लोग ध्यान करें तो उस चैप्टर में हमारे पास में एक बहुत अच्छी चीज दी हुई थी। एक सिटी था इरोड, ERODE, इरोड सुना था? Yes, sir. और इरोड में क्या करते थे कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे, कौन थे? बिग ट्रेडर्स। हु वर? Trader. बिग ट्रेडर। बिग ट्रेडर्स और मर्चेंट्स होते थे। वो बिग ट्रेडर्स और मर्चेंट्स क्या करते हैं, वो लोग वीवर्स को, यानी कपड़ा बुनने वाले लोगों को रॉ मटेरियल मतलब धागा है, कलर है, ये सब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये जो वीवर्स हैं, ये वीवर्स फिर क्या करेंगे, ये वीवर्स कपड़ा बना करके, तैयार करके, रेडी करके और किसको सप्लाई कर देंगे? ट्रेडर्स को, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग टाइप का सिस्टम होता था। इस प्रकार का जो काम करवाने का सिस्टम था, ये कहां पर था? इस सिलीसिया में भी था, ठीक है। तो वे लोग, वो बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन जो किसमें डील करते थे? टेक्सटाइल बिजनेस में। किसमें डील करते थे? टेक्सटाइल। तो वो लोग क्या करते थे? दे सप्लाई देम रॉ मटेरियल। जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे वो वीवर्स को रॉ मटेरियल, थ्रेड वगैरह सप्लाई करेंगे एंड गेव देम ऑर्डर फॉर फिनिश टेक्सटाइल, और वीवर क्या करेगा? फिनिश टेक्सटाइल उन्हें देगा, ठीक। अब इस पूरी प्रोसेस में, इस एंटायर प्रोसेस में जो भी प्रॉफिट होगा, है ना, तो टेक्सटाइल की अलग कॉस्ट बनेगी। अब कपड़े की जितनी कीमत हुई उसमें से कॉन्ट्रैक्टर अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल लेगा, ठीक है, और उतना पैसा काट के किसको दे देगा? वीवर्स को दे देगा। वीवर को। तो व्हाट द कॉन्ट्रैक्टर्स स्टार्टेड डूइंग, इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या करना शुरू किया, ठीक है। व्हाट दिस कॉन्ट्रैक्टर्स स्टार्टेड डूइंग, है ना। इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया? दे ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे उन्होंने कमीशन कम कर दिया, ठीक। द जर्नलिस्ट विल्हेम वुल्फ described the event in a Silesian village as follows. जब उन लोगों को कमीशन कम मिल रहा था, लेस कमीशन आ रहा था, तो जो वीवर्स थे, what they did, they revolted. The weavers revolted against the weavers revolted against their traders and contractors. वीवर्स ने अपने ट्रेडर्स और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ क्या कर दिया? रिवॉल्ट किया, ठीक है। इन दीज विलेजेस, तो उस समय जो रिवॉल्ट था, उस रिवॉल्ट की जो घटना है उसको एक राइटर या जर्नलिस्ट है विल्हेम वुल्फ, उन्होंने डिस्क्राइब किया। अभी कैसे किया? इन दीज विलेजेस with 1800 inhabitants, in these villages with 18,000 inhabitants, यानी ये वो गांव हैं
जहां लगभग कितने 18,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन, ठीक है। कॉटन वीविंग जो है वो सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है, यानी अधिकतर लोग क्या करते हैं, कॉटन वीविंग, कॉटन थ्रेड से कपड़ा बनाते हैं। द मिजरी ऑफ द वर्कर इज एक्सट्रीम, जो वर्कर्स हैं उनकी दुख तकलीफ और परेशानियां बहुत ज्यादा है। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब has been taken advantage of by the contractors to reduce the price of the good they order. Desperate need for job, यानी उन्हें किसकी जरूरत थी, रोजगार की बहुत जरूरत थी। हेलो हाँ अहर्निश, your brother is not live now right now in the class. ओके ठीक है फाइन 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 ठीक है, ओके कोई बात। हाँ ओके 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 ठीक ठीक ठीक। हेलो हाँ अंबुजा स्कूल से भूपेन चौहान सर बोल रहा था, पराग बम्बोले से बात करना। अंबुजा स्कूल से भूपेन चौहान सर बोल रहा हूँ, पराग बम्बोले से बात करना जी। बेटे से बात करनी थी आपके, वो क्लासेस रेगुलर अटेंड नहीं कर रहा है। हाँ जी अच्छा, थोड़ा उसको बोलिएगा, एक टास्क दिया था नेशनल एंथम सिंगिंग का, तो वो काम कंप्लीट करके और मेरे पास सर्टिफिकेट भेज दे जी, करवाइए ना। हाँ पराग, नेशनल एंथम सिंगिंग कंपटीशन का सर्टिफिकेट। हाँ अभी सुनो, हेलो हाँ गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के mygov.in जो है ना, गूगल प्ले स्टोर पे mygov ऐप डाउनलोड करो। हाँ हाँ और उस पे तुमको नेशनल एंथम सिंगिंग कंपटीशन मिलेगा, वो पूरी प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताता जाएगा, ठीक है। हाँ और वो गाना नेशनल एंथम कंप्लीट करके और मेरे पास भेजो, समझ में आ गया? ओके सर, हाँ ठीक है ओके। चलिए, so he has described the event in this way, है ना। On 4th June at 2 p.m. a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pair up to the mansion of their contractor demanding higher wages, ठीक है। So 4th of June को बहुत बड़ी संख्या में वीवर्स क्या हुए, अपने घरों से बाहर निकले और झुंड बना करके किसके बंगले पर पहुंचे, कॉन्ट्रैक्टर के बंगले पर पहुंचे, डिमांडिंग फॉर हायर वेजेस, कि उनके जो कमीशन है वो क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉल एंड थ्रेट अल्टरनेटली, ठीक है, उन्हें लगातार डराया धमकाया भी जा रहा। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस, ठीक है। जब उनको डराना धमकाना कॉन्ट्रैक्टर के आदमियों ने शुरू किया, जो वीवर्स थे वो क्या हो गए, they forced their way into the house, जबरदस्ती घर में घुस गए। Smash its elegant window panes, furniture, porcelain, घर में जो था सब तोड़फोड़ डाला। Another group broke into the storehouse, कुछ लोग स्टोर हाउस में घुस गए। Plundered it of supply of clothes which they tore to shed, ठीक है, जितना भी कपड़ा स्टोर हाउस में था उसको फाड़ के बिल्कुल तिनका तिनका बिखरा दिया। The contractor fled with his family to a neighboring village, ठीक है, which however refused to shelter such a person. कॉन्ट्रैक्टर अपनी फैमिली के साथ पास के गांव में जाकर के छुप गया, बट वहां भी उसको कोई शरण शेल्टर नहीं मिला।
He returned 24 hours later, having requisitioned the army. 24 घंटे के बाद में एक बहुत बड़ी आर्मी या फोर्स लेकर के वो कहां पर लौटा? अपने गांव लौटा। ठीक है, तो नेचुरल है आर्मी और वीवर्स के बीच में क्या होगा? झगड़ा होगा, लड़ाई हुई। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वेर शॉट। ठीक है, उसके बाद जो लड़ाई हुई उसमें 11 वीवर्स को क्या कर दिया गया? गोली मार दी गई। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. So the time is over, है ना? It is 11:22. But before binding up, I would like to talk to Anushka Tirankar, Anudipa Moon, Manish Vidhate, and Sahil Kinnake. ठीक है, प्रेरणा पवार also. आप चार या 5 लोगों की आदत हो गई है कि जब तक चौहान सर कॉल नहीं करेंगे आप लोग क्लासेस के लिए ऑनलाइन नहीं होते। ठीक है, अगली बार यदि ऐसा हुआ, गॉट इट, तो टीचमेंट ऐप से रिमूव कर दूंगा और क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप से भी हटा दूंगा। Is it clear to all 4? Yes, sir. एक आध दिन एब्सेंट समझ में आता है और मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूं कि यदि स्टूडेंट एब्सेंट है, I try my best to call him to find the reason. If your teacher is taking such effort, okay, इतना एफर्ट आपके टीचर ले रहे हैं तो ये कंडीशन नहीं बनना चाहिए कि एक दिन आए एक दिन नहीं आए। Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, okay, Yes, thank you. So we are binding up this session here only. So that's all for Thank you, today. sir. Thank you, sir.